Good afternoon, students. In the previous class, we study about the what is the fuse and types of the fuse, and we study about which type of fuse is used in our home. Okay, let us start today class with the importance of the fuse. Okay, in this class we will study that what is the importance of the fuse. Okay, let us start. Fuse is needed in any electrical system, okay, whether it is AC or DC, whether it is alternating current or डायरेक्ट करंट. ओके, फ्यूज का जो यूज़ है वो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों में यूज होता है. ओके, these protection device react to amount of heat being produced by electricity passing through wire and or component. ओके, तो जो प्रोटेक्शन डिवाइस है लाइक फ्यूज और सर्किट ब्रेकर. ओके, तो ये क्या करते हैं, जैसे किसी वायर में ओके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसकी वजह से वायर गर्म हो जाता है. ओके, देन इट रिएक्ट क्या करता है, ये सर्किट को ब्रेक कर देता है बाय मेल्टिंग ऑफ द वायर. ओके, देन the circuit or system is protected. Okay, they are used so as to protect wire and component from the extreme heat produced should there be an electrical overload or short circuit. Okay, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होने की वजह से क्या होता है, उसमें ओके बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है या फिर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, उसकी वजह से जो हमारा वायर है और कंपोनेंट है उसको ये प्रोटेक्ट करता है. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी व्हाट इज़ द ओवरलोड और व्हाट इज़ द शॉर्ट सर्किट. इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ द फ्यूज प्रोटेक्ट आवर सिस्टम फ्रॉम द एक्सट्रीमली हाई करंट. ओके, लेट अस सी. A fuse is a thin metal wire that protects a device from too much current. Here's how it works. When electrons flow through a circuit, they create heat in the metal wires. The thinner the wire. Okay, in this video you can see in the normal condition. Okay, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, करंट फ्लो होता रहता है तो उससे क्या होता है, फ्यूज़ प्रॉपर वर्क करता रहता है. लेकिन जैसे ही उसमें हाई करंट फ्लो होता है तो ये फ्यूज़ ब्लो हो जाता है और जो हमारा सिस्टम है वो प्रोटेक्ट रहता है. नेक्स्ट देखिए. The harder it is for the electrons to move, so more heat is generated. When there's too much current, the fuse acts like a weakest link in a chain by heating up more quickly than the other components, and it melts. You can see that the fuse is blow out. Okay, fuse इसका ब्रेकआउट हो गया. ठीक है, तो ये जैसे देखना कि कैसे अपने सिस्टम को ये प्रोटेक्ट करता है. That breaks the current flow and protects the more expensive components from damage by heat or fire. If a motor draws too much current too quickly, the fuse will blow. Okay, next. In this slide we will see what is the short circuit and what is overload. Okay, when a short circuit or overload occurs, the amperes being drawn spikes and this increases the heat produced in the wiring and component. Okay, यानी कि जब भी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होता है तो उस वायर में होके बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, एक्सेसिव करंट फ्लो होता है, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो हमारा वायरिंग सिस्टम वायरिंग और जो कंपोनेंट है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है वो गर्म हो जाते हैं. ठीक है, when this occurs a fuse or circuit breaker react almost instantly to stop the flow of electricity in the circuit and thereby stopping heat production. Okay, तो क्या होता है, जो फ्यूज और सर्किट ब्रेकर होता है सेफ्टी डिवाइस, वो क्या करता है, इंस्टेंटली वो रिएक्ट करता है और जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है उसको स्टॉप कर देता है एंड जो हमारा सर्किट है और जो कंपोनेंट है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं. इन दिस वीडियो यू कैन सी व्हाट इज द ओवरलोड एंड व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट. डिफरेंस बिटवीन द ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट. फर्स्ट, शॉर्ट सर्किट. Let us consider a circuit containing a lamp connected to a battery.
The circuit is protected using a 0.5 ampere fuse. In this picture you can see fuse rating is 0.5 एम्पियर, यानी कि जो फ्यूज की रेटिंग है वो 0.5 एम्पियर है और जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो 0.2 एम्पियर है। ओके, तो ये जो 0.5 एम्पियर इसकी रेटिंग है और 0.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो इससे ये नॉर्मल कंडीशन में ये फ्यूज प्रॉपर वर्क करता रहेगा। लेकिन जैसे ही इससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा 0.5 से, तो ये फ्यूज ब्लो हो जाएगा। ओके, तो जो शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, बेस और न्यूट्रल का जो आपस में अगर टच हो जाते हैं तो उसमें एक्सेसिव करंट फ्लो होने लग जाता है। ओके, तो उससे क्या होता है, अगर एक्सेसिव करंट फ्लो होगा तो जो हमारा फ्यूज है वो ब्लो हो जाएगा। Let us assume that the lamp draws a current of 0.2 ampere from the battery. If connect the positive and negative terminals of the battery externally. In this picture you can see the positive and negative terminal को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा, जब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में टच जो अगर उनको टच करवाएंगे तो एक आर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इससे में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लग जाएगा, एब नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। ओके, तो इससे क्या होगा, यहाँ से जो नॉर्मल करंट 0.2 एम्पियर जा रहा था वो वहाँ पे करंट 0 हो जाएगा। ठीक है, Parallel to the lamp, we can notice that a huge amount of current flow through this circuit and the fuse blows out. This condition is called short circuit. यानी कि क्या होता है, जब जैसे अगर हम बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं तो दोनों के टर्मिनल को अगर हम टच करवाएंगे तो उसमें एक आर्क प्रोड्यूस होगा, जिससे इसमें क्या हो रहा है, जो फ्यूज है वो ब्लो हो रहा है। ठीक है, A short circuit is a path that allows current to flow with zero or negligible resistance. It is an abnormal condition caused when positive and negative terminals come into direct contact without a load. During a short circuit, voltage drops to zero and current flow depending on the circuit impedance. जब शॉर्ट सर्किट होता है क्या होता है, जो वोल्टेज है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, और जो करंट है, करंट फ्लो है, वो डिपेंड करता है कि उस पर कितना इम्पीडेंस और कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ओवरलोड। ओवरलोड क्या होता है, Consider the same circuit as before. If we connect more lamps in parallel such that the load. Okay. पहले हमारे इन आवर सर्किट वी यूज ओनली वन लैम्प। ओके, एंड इन दिस सर्किट यू कैन सी देर आर 4 लैम्प। ओके, तो क्या होगा, जब हम 1 लैम्प के प्लेस पे 4 लैम्प यूज करेंगे तो वो ओवरलोड हो जाएगा, यानी कि मोर देन नॉर्मल कंडीशन, यानी कि नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा लोड हो जाएगा तो उसको बोलते हैं ओवरलोड। ओके, Current rises above the fuse rating. This condition is called overload, and the fuse is blown. ओके, तो जो हमारा एक लैंप यूज कर रहे थे तो उसमें 0.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, यानी कि अगर 1 लैंप से 0.2 एम्पियर होगा तो जो 4 लैंप है यानी कि 4 लैंप है उससे कितना करंट फ्लो होगा, 0.2 इंटू 4 इक्वल टू 0.8, यानी कि विच इज़ द मोर देन द फ्यूज रेटिंग। फ्यूज रेटिंग क्या था, 0.5 एम्पियर। ओके, तो 0.5 एम्पियर से 0.8 एम्पियर ज़्यादा है, तो इससे भी हमारा जो फ्यूज है वो ब्लो हो जाएगा। Out eventually. Overload is an abnormal condition during which the current flow goes beyond the rated or desired value. In this picture you can see the voltage may reduce, voltage reduce करता है, बट वो क्या होता है, जीरो नहीं होता है। whether in the short circuit the voltage reduced to 0, but in the overload the voltage did not reduce to 0. okay, reduce करता है लेकिन ये 0 नहीं होता है। okay, Under overloaded conditions, the voltage may reduce but will not become zero. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द पॉसिबल एक्सीडेंट विदाउट ए फ्यूज वायर, यानी कि जब हम फ्यूज यूज नहीं करेंगे तो क्या क्या एक्सीडेंट हो सकते हैं। हाउएवर इफ यू बिल्ड द वायरिंग सिस्टम विदाउट ए फ्यूज, ओके, दैट इज यू सिंपली बाईपास देम एंड कीप ए कंटिन्यूस लाइन, नथिंग हैपन until the first
short circuit. If this happen, then if fuse is used, the fuse wire melt and break the circuit. ओके, क्या होता है जब अगर तुम फ्यूज का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन है, ओके, जहाँ तक शॉर्ट सर्किट नहीं होगा या ओवरलोड नहीं होगा वहाँ तक तो ये प्रॉपर वर्क करता रहेगा, ठीक है. बट व्हेन short circuit occur, what happen? If short circuit occur, this happen, then if fuse is used, the fuse wire melt and break the circuit. अगर हम फ्यूज वायर का यूज़ करेंगे या फ्यूज यूज करेंगे तो जो हमारा फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाएगा और जो हमारा सिस्टम है या जो सर्किट है उसको वो ब्रेक कर देगा, यानी कि जो फ्यूज वायर है वो ब्रेक हो जाएगा और जो हमारा सिस्टम है वो उससे सेफ रहेगा, वो हमारा सिस्टम प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है. Without a fuse, there are many possibilities for electrical fires or extreme damage to the circuit. Okay, what happen if we did not use the fuse? What happen? There may be electrical fire, और electrical fire होगी उससे क्या होगा, जो हमारा सर्किट है वो डैमेज हो जाएगा, जो हमारे कंपोनेंट है या जो हमारे डिवाइस है वो डैमेज हो जाएंगे. ओके, तो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक. थैंक यू.